External point here is what? X minus 3, x minus 3 whole square, because here it is going to be my x is going to be my x1, x2, and this is going to be what? This is going to be my x1, x1, x y1, z1, and this is going to work as x2, y2, z2. So x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square plus z minus 1 whole square under root. This shall be my radius, and the radius value shall be 5. So if you have 5 right here, what shall that be? If you square both sides, isn't it? If you square both sides, what do you think you will get? Just tell me. You will have x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square, Atul, plus z minus 1 Yes, whole ma'am. square. Understood or not? Yes, ma'am. You understand? So how difficult is that? How difficult is that to actually, find out? That's very simple now. So now this is going to be my equation. So 25 shall be x minus 3 whole square. You can elaborate it here. So purely based upon the distance formula. Nothing much in this. Yes or no? So x y minus 2 whole Yes, ma'am. square plus z minus 1 whole square. Understood? This is the equation. Do you understand my point? Yes, ma'am. Are you sure? So that's how you're supposed to calculate. That's how you're supposed to calculate. Understood? So on Yes, a ma'am. similar basis, like for example, so what I'm trying to explain you here is I'm trying to explain you this, that whenever you have to calculate the equation of the sphere, whenever you have to calculate the equation of a sphere, so how would you calculate that? Just tell me. So you will have the sphere, and if the center is, let's suppose, -1, 6, and -7, and this point here shall be, this green point here shall be x comma y comma z, and there shall be this radius. So how would you put it into the formula? You will have x minus of -1 whole square, because I will have x2, that is x, minus x1, which is -1. So x2 minus of -1. So that is going to become x plus 1, isn't it? Yes, ma'am. Plus y minus 6 whole square plus z minus of -7 whole square under root shall be whatever is the radius. So what I'm trying to tell you, that it is going to become x plus 1 whole square. So this plus right here, just have a look at the sign of the number here. If it is plus, your center has minus of it, reverse of it. If you have plus y minus 6 whole square plus z plus 7 whole square, and that shall be r under root. So if you have a minus here in -6, your center in the sphere in reality will have +6. If you have +7 here, your center will have -7. Are you understanding? So basically, Yes. if I am given this particular equation, just have a look at this question. Just have a look at this question. It says x minus 4 whole square plus y square, right? Yes, ma'am. One second. The question is what? The question is that there is a sphere whose center and radius you have to find out. And the equation is x square plus y square plus z square minus 6y plus 8z equals to 0. Yes or no? So if I have this particular sphere, right? If I have the sphere, I do not know its center, but the equation of the sphere is given to me. What is that? You have to understand here that the coefficient of x square is 1, the coefficient of y square is 1, and the coefficient of z square is 1. It has to be 1. It has to be 1. Do you understand my point? And Yes, ma'am. when this coefficient of x square, y square, and z square has to be 1, that means what? That but there is no equation like this x minus 4 square something. Nothing is written to me like that.
So I will have to convert this equation. How? Understand. X square is x square. Club all the y's together. So y square minus 6y I'm going to put together. And z square plus 8z I'm going to put together. Equals to 0. Now in this bracket of y square minus 6y here, I am going to see what is the coefficient of y. Okay, y square is of no importance to me. Y square is just have to have the coefficient of y square as 1. ठीक है ना? तो y square का coefficient आपका क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए सिर्फ. y का coefficient क्या है यहाँ पे? -6. तो y का जो coefficient है उसको आप माइंड में हाफ कर लो. कितना आ गया? 3. जो y का कोएफिशिएंट है ना, उसको आप क्या कर लो? माइंड में हाफ कर लो. समझ में आ रहा है? और माइंड में Yes, हाफ ma'am. करने के बाद उसको आप स्क्वायर कर लो. सो 3 का स्क्वायर कर लो. समझ आई बात? तो ये क्या Yes, बन ma'am. जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये बन गया y स्क्वायर. तो आंसर आया 9 है ना? y का 3 का स्क्वायर करके आंसर आया 9. तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 9. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. Yes, ma'am. एंड प्लस यहाँ क्या बन गया? z स्क्वायर प्लस 8z. बिल्कुल सेम काम आपको यहाँ करना है. z स्क्वायर से मेरा को कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद z स्क्वायर. बट जो z का कोएफिशिएंट है 8, उसको आप हाफ कर लो माइंड में. 8/2 और उसका हाफ कर लो. और उसका जो आंसर आया हाफ करके उसको स्क्वायर कर लो. तो 16 आया ना आंसर. उसी को इसी ब्रैकेट के अंदर +16 -16 कर लो और इधर 0 हो जाएगा. तो मेरे पास इस x स्क्वायर को तो मैं लिख सकती हूँ x माइनस 0 होल स्क्वायर. उसमें तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा. यहाँ पे जो आपने स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ना, उसको क्या करो आप? एक y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 है ना बच्चे, तो आप इसमें करो Yes. y स्क्वायर माइनस 6y. सिर्फ प्लस वाला साथ रखना है ब्रैकेट में और -9 को बाहर निकाल देना है. प्लस ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में z स्क्वायर के साथ 8z तो रखना ही रखना है क्योंकि ये तो पहले भी साथ ही थे. y स्क्वायर के साथ -6y को साथ ही रखना है क्योंकि ये तो पहले भी साथ ही थे. इज इट? लेकिन जो Yes, ma'am. हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है उसमें से सिर्फ प्लस वाला साथ रखना है और माइनस वाले को बाहर पहुंचा देना है ब्रैकेट के. लाइक दिस. नाउ -9 एंड -16 ये बन गया -25. तो मेरे लिए इक्वेशन बन गई x माइनस 0 का होल स्क्वायर. अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये दिख रहा है y स्क्वायर और ये 3 9 क्या दिख रहा है? 9 क्या दिख रहा है? 3 स्क्वायर. तो ये दिख रहा है मेरे को y माइनस 3 का होल स्क्वायर. इजंट इट? क्योंकि ये क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ऐसे ही तो बन रहा है. देख, तभी तो 6y बनेगा. Yes, बता. ma'am. तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है बच्चे? मुझे इससे समझ आ रहा है कि ये प्लस ऐसे ये क्या बन रहा है बताओ? ये बन रहा है z स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2ab. तभी तो 8z बनेगा. बता. Yes, ma'am. है ना? इससे क्या समझ आया कि भाई मैम ये बन गया z प्लस 4 का होल स्क्वायर और -16 -9 बन गया -25 जो कि उधर जाके हो जाएगा +25. इधर चला गया सर. यस और नो? तो अब ये 25 Yes, क्या ma'am. दिख रहा है? 5 का स्क्वायर दिख रहा है. तो मेरी इक्वेशन क्या होती है? स्फीयर की इक्वेशन क्या है? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस z माइनस l का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी r स्क्वायर. है ना? तो सेंटर क्या है? h k l. तो अगर यहाँ माइनस का h है तो यहाँ एक्चुअल सेंटर प्लस h है. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा सेंटर क्या बन गया? 0 0 -3 है तो यहाँ +3 बन गया है और यहाँ +4 है तो यहाँ -4 बन गया. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. Yes, ma'am. है ना जी? तो इस तरीके से आपका ये पार्ट आ जाता है. सो 0 3 एंड -4 और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा इसका 5. ये स्फीयर बन गया आपका. तो आपको इसमें करना क्या है? इक्वेशन दे रखी है और आपको थोड़ा सा उसको एक्चुअल फॉर्म में, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. Yes, ma'am. Right? So this general equation of sphere you have to learn and understand कि कैसे आई. बिल्कुल सिंपल है. उससे आया ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया. यू अंडरस्टैंड? तो बस ये जो वैल्यू निकाली ये आपको समझ आ गया कि भाई आपका h 0 हो गया, k 3 हो गया, l -4 हो गया. क्योंकि इक्वेशन में अगर प्लस है तो फाइनल यहाँ पे -4 होना चाहिए. तभी आप सोचो, तभी डिस्टेंस फॉर्मूला से ये पॉइंट x y z रहा होगा. तभी तो ऐसा आया होगा कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, z -4 का होल स्क्वायर. समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am.
ठीक है, तो ये पार्ट आ गया। ऐसे ही अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपकी बुक में आपके असाइनमेंट में दे रखा है, यू कैन कीप दैट असाइनमेंट लिटिल बिट रेडी, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या करवा रही हूँ। ठीक है, उसी में एक क्वेश्चन स्फीयर का और क्या दे रखा है प्रॉब्लम सेट के अंदर। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने ये दे रखा है, क्या भाई, 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 9, और आपको बोला जा रहा है कि इसको बताओ सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x² y² एंड z² शुड बी 1, शुड बी 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2/3y माइनस 2/3z। अगर ये चीज समझ आती है कि कैसे हमने 3 कॉमन निकाला, तो आपको नहीं आती तो समझ लो, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 तो कर ही सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 तो कर ही सकती हूँ, बोलो, है ना, क्योंकि 3 तो दिख ही नहीं रहा था ना इसमें कॉमन निकालने के लिए, पर हमने डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 करा तो ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा अब, तो नीचे 2/3y बच गया और नीचे 2/3z बच गया, और इधर आ गया मेरे पास इक्वल्स टू 9। अगली बात समझ, Yes, ma'am. तो ये 3 डिवीजन में चला जाएगा यहाँ पर, तो इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² प्लस z² minus 2/3y minus 2/3z shall be 9/3. So this comes out to be 3 for me. तो अभी क्या करना है, x² प्लस y² प्लस z² minus 2/3y minus 2/3z shall be 3. And now I have to club all the y's together and all the z's together. अगर x के वाला भी कोई है तो x के साथ भी कर लेते हैं, बट x अकेला है फिलहाल इस केस में, तो x² हो गया, y² को लिखो y² माइनस 2/3y प्लस z² माइनस 2/3z, समझ आ गई, एंड दैट शैल बी इक्वल टू, Yes, अभी ma'am. अब क्या करना है, ये हो गया x², राइट, राइट, एंड दिस शैल बी माय y पार्ट एंड दिस शैल बी माय z पार्ट एंड दैट शैल बी 3। सो बेसिकली करना तो वही है, y का जो कोएफिशिएंट है उसको साइड में लिखो, उसका हाफ करो, इनटू हाफ करो, आंसर आया 1/3, उसको स्क्वायर करो जो आंसर आया, तो आंसर आया 1/9। तो देखो 2/3 तो यहाँ पे z का भी कोएफिशिएंट है, तो वही होना पड़ेगा कि 2/3 को हाफ करो, हाफ करा तो 1/3 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, 1/3 का स्क्वायर करा, तो क्या करना है, जो आपका क्वाड्रेटिक पार्ट बनता है ना, क्वाड्रेटिक, उसमें जो लीनियर पावर है जिसकी पावर 1 है, उसका कोएफिशिएंट को हाफ करना है, उसको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उसका आंसर निकालना है। तो आपने क्या करना है, आपका इक्वेशन बनेगा x² तो है ही, इसी ब्रैकेट के अंदर क्या करो, y² माइनस 2/3y के अंदर ही 1/9 ऐड करो और 1/9 सब्ट्रैक्ट करो, प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट लो, z² माइनस 2/3z के अंदर ही 1/9 ऐड करो और 1/9 सब्ट्रैक्ट करो। ये कोइंसिडेंटली हो रहा है, एवरी टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि z का कोएफिशिएंट भी अतुल यहाँ पे 2/3 था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Yes, ma'am. तो 2/3 का हाफ करा तो 1/2 आया, और 1/3 का स्क्वायर करा तो 1/9 आया, और ये बच्चे कैंसिल हो गया, तो दिस कैंसिल, तो कैंसिल करना नहीं है, हमने करना क्या है, हमने ऐसे लिखना है x² और ये क्या बनेगा y माइनस 2/3y प्लस 1/9, प्लस वाला साथ में रखना है, माइनस वाला बाहर निकाल देना है। सिमिलरली प्लस z² माइनस 2z/3 और प्लस 1/9 वाला साथ रखना है, माइनस 1/9 उधर निकाल देना है, और इधर इक्वल टू 3। सो टेक दिस हियर, take this part also here on the other side of the equal to sign, and what do you think we will have, we will have x² plus x² minus 2/3y, sorry, plus y² minus 2/3y plus 1/9, है ना, प्लस z² minus 2/3z plus 1/9, और इधर की तरफ मेरे पास जाएगा 3 plus 1/9 plus 1/9। तो ये क्या दिख रहा है, ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है a² और 1/9 दिख रहा है मुझे 1/3 का होल स्क्वायर, सो माइनस 2ab। तो ये ऐसा नहीं लग रहा x² प्लस y² माइनस 2ab माइनस 2xy, और ये तो x माइनस y की आइडेंटिटी होती है,
राइट अतुल? Yes, ma'am. तो ये हमारे पास सिमिलरली z माइनस 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बच्चे ये ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का क्वेश्चन 1 बनाना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 9 हो गया, तो यहाँ 1 इंटू 9 कर दो, तो ये 27 + 1 28 29, तो 29/9। यस और नो? सो ये आ गया Yes, मेरे ma'am. पास, ये आ गया मेरे पास, इजंट इट? सो व्हाट डू वी हैव इन हियर? अंडरस्टैंड व्हाट डू वी हैव इन हियर? सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस y minus 1/3 whole square plus z minus 1/3 whole square is going to be 29/9. So basically I can say 29/3 का whole square. तो अगर कंपेयर करें तो हम एक्स स्क्वायर अकेले को लिख सकते हैं ना, x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये मेरे पास बनेगा x. Yes, तो माई सेंटर फॉर दिस स्फीयर शैल कम आउट टू बी व्हाट? इफ दिस इज द रिक्वायर्ड स्फीयर, सो सेंटर विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस. तो सेंटर O कैसा लगेगा? 0, 1/3, क्योंकि यहाँ माइनस 1/3 है, तो मेरे पास यहाँ प्लस yes, 1/3 आएगा, कॉमा 1/3, और yes, रेडियस आ गया मेरे पास कितना? द रेडियस इफ यू कंपेयर, बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर प्लस z माइनस l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. तो r क्या हुआ? √29/3 का होल स्क्वायर. समझ आ रहा है ना बात? ये बोलो, yes, ठीक है? इस तरीके से हमारा ये स्फीयर का क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा. सो वेरी सिंपल पार्ट, जस्ट हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप कर पाओगे स्टेप सब, देखो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सारा सा ऐसा ही है जैसे आपको दे रखा है. इन्होंने क्या, इन्होंने दे रखा है x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 103 प्लस 2x प्लस 4y माइनस 2z. अब ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या करोगे इसमें आप? इधर की तरफ तो देखने से लग रहा है कि मैम ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये तो बिल्कुल हमारे x माइनस h का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, y माइनस k का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, और z माइनस k के होल स्क्वायर से मैच कर रहा है. पर फिर उसके लिए इधर सिर्फ एक नंबर होना चाहिए था ना. यहाँ तो एक्स वाई जेड भी आ गया, इजंट इट? तो ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, अपने को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई फिर से करना पड़ेगा. तो कैसे मॉडिफाई करेंगे? देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, आइडेंटिटी खोल दे. यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ बनेगा जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z. इधर आ गया 103 प्लस 2x प्लस 4y माइनस 2z. सही बात है? yes, ma'am. और जितने भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है ना, उनको आप उठा के इधर ले आओ. तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक माइनस 2x इधर से आ गया, प्लस 1 तो है ही ये वाला, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y तो है ही, और ये वाला 4y इधर उठ के आएगा तो माइनस 4y ये बन जाएगा, प्लस 4 ये वाला चल रहा है, प्लस जेड स्क्वायर तो है ही, और ये वाला 2z है, और माइनस 2z और उठ के आ गया तो प्लस 2z बन गया, और प्लस 1 तो है ही, और इधर आ गया 103. अब जो नंबर्स बचे हैं, ये 1, ये 4 और ये 1, इनको आप माइनस करने के लिए इधर ले जाओ, क्योंकि इनका मुझे फिलहाल अभी करना नहीं कुछ. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस z स्क्वायर प्लस 4z, and here it is going to become 103 minus 1 minus 4 minus 1. So for me it is going to become 102 101, और 4 और घटा दो 101 में से, तो ये जाएगा 97. और इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस इधर क्या बच गया मेरे पास, z स्क्वायर प्लस 4z. ठीक है? Yes, ma'am. और इधर बचा था 97. अब क्या करना है, फिर से वही काम. 4, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, 4, और सबसे अच्छी बात, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो x का कोएफिशिएंट कौन है, 4. तो 4 का हाफ करें 2, 2 का स्क्वायर करें 4, तो प्लस 4 True. माइनस 4. और मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर 4 लिख रही हूँ और ब्रैकेट के बाहर माइनस 4 लिख रही हूँ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, Yes, ma'am. है ना? और इधर y का क्वेश्चन कौन है, 8, 8 का आधा करो मनी मन में 4, 4 का स्क्वायर करो 16, तो 16 का प्लस बाहर लिखो, माइनस का बाहर, प्लस का 16 अंदर Yes, लिखो, माइनस का 16 बाहर लिखो. फिर 4 का आधा करो 2, 2 का स्क्वायर करो 4,
तो +4 बाहर करो, -4 इधर। तो जो माइनस ब्रैकेट के बाहर लिखे -16 -4 -20 और -20 -4 -24 ये सब उठा के आप माइनस सब बन गया, तो ये सारा का सारा उठा के इधर +24 कर दो। तो इधर बन गया 11, सो ये बन गया 121। ठीक है ना? एंड हियर इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? ये क्या लग रहा है? अब देखो ये बन गया ना x - 2 का होल स्क्वायर लग रहा है ये a² + b² 2 स्क्वायर -2ab। Yes. और ये लग रहा है y - 4 का होल स्क्वायर और ये लग रहा है z + 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज लुकिंग लाइक 11 का स्क्वायर। तो आप देखो ये अब मैच कर रहा है हमारे इक्वेशन के साथ। किसके साथ? कि मैम x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर प्लस z - l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो आप कंपेयर कर लो, तो आपका h 2 है ना? h का 2 है वैल्यू, Yes. यहाँ से k का वैल्यू 4 है और यहाँ -l का वैल्यू +2 है, तो l का वैल्यू -2 हो गया। तो सेंटर क्या आ गया स्फीयर का? सेंटर आ गया स्फीयर का 2 2, यहाँ माइनस का होता है तो यहाँ पॉजिटिव बन जाता है, -4 बिकम्स +4 और +2 बिकम्स -2। यू Minus. अंडरस्टैंड? और Yes, ma'am. रेडियस आ गया हमारा 11। अब हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सारे। ठीक है? Yes, You be ma'am. able to do these questions now. So the third question Yes. in your assignment is exactly the same. You can directly put in the values. उसमें सेंटर दे रखा है 2, 3, 4 और रेडियस दे रखा है √15। सीधा फॉर्मूले में डाल दो, ये h, k, l दे रखा है कि मैम अगर ये स्फीयर है और ये सेंटर है h, k, l यानी कि 2, 3, 4 और रेडियस मुझको पता है, तो हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर एंड शैल बी √15 का होल स्क्वायर। बस ये आपकी इक्वेशन आ गई। ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर दीजिए, ओपन नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन कीप इट राइट हियर। समझ आई बात? Yes, ma'am. है ना? एक क्वेश्चन तो ये है। अब जैसे ये पूरा जो असाइनमेंट आपका दे रखा है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस कुछ-कुछ दे रखे हैं। तो मैंने आपको क्या कराया था देखो,